Hello friends, how are you? You are welcome back to my YouTube channel Science and Maths classes by Jay sir. Okay, and today we will discuss about physics of class 12 and in physics we will discuss sharing of charge between two charge conductor. Sharing of charge between two charge conductor. At first we take two charge conductor as shown in this figure. First conductor is A and second is B. Okay, and before sharing of charge of conductor of A is Q1 and charge of conductor B equal to Q2. Okay, and when conductor A is given Q1 charge, then its potential becomes V1, and when conductor B given Q2 charge, its potential becomes V2. Okay, and after sharing, charge of conductor A becomes Q1, and after sharing, charge of conductor B becomes Q2. Okay, and here capacitance of conductor A equal to C1 and conductor of and capacitance of conductor B equal to C2. Okay, so at first let A and B are two conductors of capacitance C1 and C2 respectively. Okay, here C1 A and B are two conductors of capacitance C1 and C2. Okay, the conductor A is given Q1 charge so that its potential becomes V1, and this is the condition before sharing charge. Okay, this is the condition for before sharing charge. Okay, so we know that capacitance equal to Q1, capacitance equal to charge by potential. So C1 equal to Q1 by V1, or Q1 equal to C1 V1, equation 1. Okay, and charge conductor B is given Q2 charge. Here charge conductor B is given Q2 charge, so its potential becomes V2. Okay, so that its potential becomes V2, so we have Q2 equal to C2 into V2. Okay, Q2, charge Q2 means this charge of conductor B equal to small q2, and q2 equals to C2 into V2, equation 1, and this is the condition for before sharing charge. Okay, now both conductors are connected by a conducting wire. Here this is the conducting wire, and both conductor A and B are connected through a conducting wire. Okay, so sharing of charge between conductor takes place. Sharing of charge between conductor A and B takes place until the potential of both becomes equal. जब तक इसका क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाता है, तब तक इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज होते रहता है. ओके, जब इसको कंडक्टिंग वायर से जब जोड़ देते हैं दोनों कंडक्टर को, तो क्या होता है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज तब तक होते रहता है जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. ठीक है, तो इस तरह से दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, और इस तरह से जो इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा जब, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल. ओके, दिस कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल is called common potential B. Now the charges developed on conductor after sharing of charge are Q1 and Q2 respectively. Here Q1 and Q2 are charge developed after sharing of charge. Okay, here Q1 and Q2 are charge developed after sharing of charge. Okay, now we have to find expression for कॉमन पोटेंशियल. ओके, अब हमें कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, यहाँ तक क्या बोलें कि एक चार्ज कंडक्टर ए है, एक दूसरा चार्ज कंडक्टर बी है, जिसका सबसे पहले इसका चार्ज Q1 है, और मतलब बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज कंडक्टर ए का चार्ज Q1 है और कंडक्टर बी का चार्ज Q2 है, और इसका पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल V2 है. ठीक है ना,
तो ये आपका कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से आया Q1 बाई V1 और Q1 इक्वल टू C1 V1 इक्वेशन 1 मान लिए। फिर यहाँ से आया Q2 इक्वल टू C2 V2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लिए। और ये दोनों कंडीशन है बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज, ये दोनों कंडक्टर के बीच चार्ज का शेयरिंग होने से पहले का ये एक्सप्रेशन है। ओके, आफ्टर शेयरिंग क्या होता, बाद में क्या होता है, दोनों कंडक्टर ए और बी को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। जब कंडक्टिंग वायर से हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज होने लगता है, ठीक है, आवेश का साझा होने लगता है, मतलब वितरण होने लगता है। तब क्या होता है, सो शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर टेक्स प्लेस until the potential of both become equal। जब तक दोनों चार्ज का पोटेंशियल, मतलब दोनों कंडक्टर का जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाता है तब तक चार्ज दोनों में शेयर होते रहता है। ओके, दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो यही जो इक्वल पोटेंशियल है वही आपका कहलाता है कॉमन पोटेंशियल। द चार्जेज डेवलप ऑन कंडक्टर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज आर Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। तो आफ्टर शेयरिंग जो भी चार्ज डेवलप होता है कंडक्टर ए और कंडक्टर बी में, वो है आपका कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2। अब इसके बाद हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो चलते हैं कॉमन पोटेंशियल की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रॉम फिगर अब क्या दिया हुआ, V1 इक्वल टू Q1 बाई C1 होगा। मीन्स पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए इक्वल टू V1 इक्वल टू Q1 बाई C1, और हियर Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, एंड सिमिलरली V2 मीन्स पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर B इक्वल टू V2 इक्वल टू Q2 बाई C2 और Q2 equal to C2 into V2. Here Q1 and Q2 are the charges of conductors after sharing of charge. Okay, total charge after sharing of charge between conductors. Therefore, total charge after sharing of charge between conductors A and B will be how much? Q1 plus Q2 equal to C1 into V1 plus C2 V2, Q1 plus Q2 equal to C1 V1 plus C2 V2, and when V1 equal to V2 equal to V, that mean जब दोनों का ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल जीरो, जब तक इक्वल ना हो जाता है तब तक शेयरिंग ऑफ चार्ज होते रहता है। तो जब क्या होगा, V1 और V2 दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस केस में क्या लेंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू हम V लेंगे, जिसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, देन वी हैव Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1 प्लस C2 और ब्रैकेट V। मीन्स आपका जो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, ये आपका कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नाउ सिंस Q1 एंड Q2 इक्वल टू Q1 means small q1 plus small q2 equal to q1 plus q2 means before charge before sharing of charge and charges total charge before sharing equal to total charge after sharing, because here no loss of charge occurs due to sharing of charge, क्योंकि यहाँ पे sharing of charge के चलते कोई भी लॉस चार्ज का नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज है, ठीक है। इसलिए Q1 प्लस Q2 इक्वल स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो स्मॉल Q1 और Q2 है ये बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज का ये चार्ज है कंडक्टर्स का, और यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये दोनों चार्ज डेवलप हुए हैं कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2। सो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू Q1 बाई स्मॉल Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 से Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 से जब वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा,
जब यहाँ पे हम Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 and Q2 from equation 1 and 2, we have क्या मिलेगा, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. This is the expression for common potential also. Okay. And this equation is taken as equation 5. Okay. Now charges developed in both the conductors after sharing of charge equal to how much, then we have to find charges developed after sharing of charge. Okay. ओके फ्रेंड्स, चार्ज तो क्या बोल रहे थे, चार्जेस डेवलप ऑन कंडक्टर्स आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज. तो कितने चार्ज डेवलप होता है दोनों कंडक्टर्स में आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज. जब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, जैसे हम लोग कॉमन पोटेंशियल भी बोले. ठीक है, तो जब आपका कॉमन पोटेंशियल भी हो गया तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1 भी एंड Q2 इक्वल टू C2 भी. ये आपका एक्सप्रेशन है चार्ज का, कब, जब आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाता है. ठीक है, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या हो गया, Q1 इक्वल टू C1 भी एंड Q2 इक्वल टू C2 भी. इस इक्वेशन को 6 मान लिए, इसको हम लोग इक्वेशन 7 मान लिए. इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7. देन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 7 वी हैव Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2. ये कहाँ से आया, Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 V by C2 V. Here V cancel out, so we have here Q1 by Q2 equal to C2 by C1 by C2. Okay, Q1 by Q2 equal to C1 by C2. Thus the charges developed on conductors after sharing of charge is in the ratio of their capacitances. इस तरह से दोनों चार्ज कंडक्टर के बीच में जब चार्ज मीन्स शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है तब क्या होता है, इसका ये जो चार्जेस डेवलप्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं Q1 by Q2 इक्वल टू C1 by C2. दैट मीन चार्जेस इज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस. तो जो चार्जेस का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कैपेसिटेंस के अनुपात के बराबर में होगा, है ना. चार्जेस डेवलप्ड ऑन बोथ द कंडक्टर्स आर in the form of ratio of their capacitances. Okay, ratio of their capacitances. That means Q1 by Q2 equal to C1 by C2. जब शेयरिंग ऑफ चार्ज दोनों कंडक्टर के बीच में होता है तो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज इस दोनों के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा वो आपका होगा दोनों चार्ज कंडक्टर के कैपेसिटेंस के अनुपात के रूप में. दैट मीन Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स कंप्लीट हो जा रहा है. ओके, तो आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है या आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.